गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डे 3 इन सैनजी। तो आज बस गोइंग बैक टू दिल्ली। तो थोड़ा सा लॉरी मैम के साथ जैसे आपको बताया था शूट करना है। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, अगर वो मिल जाएंगे तो वहाँ पे शूट कर लेंगे। थोड़ा सा आपको स्कूल भी दिखा दूँगा और बाकी आज तो दिल्ली का वापस रास्ता वही सेम ही रहेगा, कुछ नया नहीं है तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत शूट कर लूँगा। और अभी टाइम 9 बज रहे हैं, तो बस थोड़ी देर में निकलते हैं, शूट करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। So we have Mr. Kumar Singh ji with us. So right now he can tell you something about it. Can you come this side, sir? Light is coming on this way. So right now he is with us. So can you tell something about yourself? I was born in this village. Okay. But after my fifth grade, I was able to go to Delhi. And after graduation, I came back to my village. Okay. Since then, I am in my village. For 20 years, I was representing my village and this region in the panchayats. Okay. And then I started school also when I got married to my wife from Canada. Okay. But there was no English medium school in this area, so we started. So that helped contain this migration in this area. Most of the villages across there in this area, there people are migrating to cities because of school. So, Education, yeah. so we were able to stop that in this area. So right now, sir, how many children do you have in your school? And We they are have from this local 150 150 from nursery to class 8. nursery to class. And children are from this village only or from surrounding Yeah, villages? surrounding villages. We have one bus also. So Okay. we pick them up from 10-kilometer area. Okay. So because small children can't walk all the way. And what about the teachers, sir? Yeah, we have some teachers from nearby city, Mussoorie, Okay. and most of them are from this area. And something I got to know about, like the bakery that you are running, and the amount is going for the education of the children. So can you tell something about that? Yeah, that was one aspect of supporting our school. Okay. We started that during COVID period when our school was closed, and people was having difficulty in supporting the school. So then we thought that we should have some alternative to help our school. So that's helped a lot. Okay. Yeah. So that's great, sir. So actually the reason behind that I came here was majorly because of this bakery and the school concept. I wanted to meet you both, Miss Laurie as well. But right now, as he's saying that she's in school right now. Yesterday they were they were outside like in Dehradun. So I got to Yes. know. I was unable to shoot at that time. So right now she's there. I will try going in the school if she will be free, so I can record something. Otherwise next time I will come. But really good to see you, sir. Oh, I thank really you. enjoyed meeting you. Oh, thank you. And I really appreciate whatever you are doing for the school and the children over there. So I really appreciate that. Thank you. for Pleasure coming. to meet you, sir. So दोस्तों अभी मैं निकल रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी लॉरी मैम से शूट नहीं कर पाया क्योंकि वो शी वॉज इन क्लास राइट नाउ। तो अभी मैंने उनको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम वी विल मीट। और
अभी मैं कुंवर सर से तो मिल ही लिया जैसा कि आपने देखा, तो शी वाज सेइंग दैट शी इज़ बिजी राइट नाउ, अदरवाइज शी वुड लव टू कम एंड स्पीक अबाउट द स्कूल एंड द बेकरी वॉट एवर शी इज़ डूइंग हियर। सो कोई नहीं दोस्तों, फिर आने का एक मौका मिल गया, तो दिवाली पे मैं वैसे भी सोच ही रहा था, तो फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों अभी मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पे, जैसे आपको पता है सुबह नाश्ता तो किया नहीं था, तो अभी बस देहरादून पहुँचा ही था, तो ये एक अंकल आंटी दिख गए, यहाँ पे वड़ा पाव खाने के लिए रुक गया हूँ। तो प्लान अब ये है कि एक मेरे कज़न ब्रदर हैं, उनका कैंप है ऋषिकेश में, तो उन्होंने मेरी पिक्चर्स देखी होंगी, तो उन्होंने मैसेज किया कि कहाँ पर है, तो मेरी बात हुई उनसे फिर, तो उन्होंने कहा कि एक बार आ जा, क्योंकि कभी भी मैं गया नहीं हुई कैंप में, तो बुला रहे हैं, तो अभी देखता हूँ वहाँ जाके और फिर आपको भी मिलवाता हूँ ऋषिकेश में, उनका कैंप दिखाता हूँ सब कुछ। तब तक अभी नाश्ता कर रहे हैं, तो वड़ा पाव दोस्तों, वड़ा पाव अभी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी टेस्टी बनाया हुआ है इन्होंने। तो छोटा सा इनका घाट है पर बहुत टेस्टी है, तो कभी आप इधर देहरादून में हो तो आप विज़िट करिए। साई मंदिर के पास में पीछे साई मंदिर है, वो आप देख सकते हैं। तो कभी भी कितने बजे से लगा लेते हैं आप? सुबह 11 बजे तक, 11 से 8। अच्छा, इनके पास दबेली भी है और बड़ा पाव भी है, छोटा सा काट है पर खाना बहुत बढ़िया है, तो विज़िट करिए कभी भी। तो दोस्तों अभी जैसे आपको बताया था कि वहाँ पे बैठ के वड़ा पाव खाया, तो अभी यहाँ पे मैं आया हूँ, जो बताया था ना आपको, कज़न ब्रदर है मेरे, उनकी कैंपिंग साइट है। तो ये ऋषिकेश से बद्रीनाथ वाली जो रोड है, वहाँ पे नीलकंठ रोड पे पड़ता है, फिर ऋषिकेश से बद्रीनाथ वाली रोड से जाके फिर नीलकंठ वाली रोड पे मोहन चट्टी में। अभी पूरी लोकेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अभी यहाँ से 3-4 किलोमीटर और है, तो अभी पीछे ऑफ रोड था, अब थोड़ा सा रास्ता सही हुआ है, तो लेके चलते हैं आपको कैंपिंग पे, कैंपिंग साइट पे। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों मैं कैंप साइट पे पहुंच गया था, अपने भाई से मिला और कुछ फ़ोटोज़ में अटैच कर रहा हूं। तो कभी आपको ऋषिकेश जाना और कैंप में रुकना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने मुजफ्फरनगर क्रॉस किया और अभी टाइम हो रहा है 8। तो वहाँ से जैसे मैंने बताया था आपको, कज़न ब्रदर का ऋषिकेश में कैंप था, वहाँ से निकल गया था और बस फिर तब से बाइक खींच रहा हूँ, मैं चला ही रहा हूँ। तो बस अब थोड़ा सा डिनर करने के लिए रुका हूँ और थोड़ा सा थकावट भी हो गई है, तो बस अब रुक रहा हूँ। तो अब बस थोड़ा सा दाल रोटी खा के फिर से बाइक स्टार्ट करूँगा। यहाँ से दिल्ली अभी है 125 किलोमीटर। तो बाकी आपको कैसी लग रही है सीरीज़, कमेंट करिए ज़रूर और बताइए मेरे को। तो बाइक अपनी यहाँ खड़ी है, अभी यहाँ रुका हुआ हूँ मैं, पंजाबी ढाबा। दोस्तों ये खाना मंगाया, दाल रोटी, और सामने अपनी बाइक खड़ी है वो। तो बस जल्दी से खाना खाता हूँ और दोबारा से बाइक स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों ये जो चटनी है ना इनकी, बहुत टेस्टी है। मैं वैसे ज़्यादा शाम को खाता नहीं हूँ, पर मैंने इस चटनी के चक्कर में एक एक्स्ट्रा रोटी खा ली। दिन में लंच तो किया नहीं था कुछ, सुबह वही ब्रेकफास्ट करके जो आपको दिखाया था वड़ा पाव, उसके बाद अब खा रहा हूँ। और ये चटनी बहुत टेस्टी है दोस्तों, बहुत टेस्टी चटनी है इनकी, बिल्कुल बहुत टेस्टी है। ये देसी खाना है बिल्कुल। तो दोस्तों फाइनली घर वापस आ गया
तो बस अब टाइम हो रहा है 10:30। वापस आ गया हूँ घर पे और आज 350 किलोमीटर बाइक चला लिया अभी। तो पहले प्लान यही था कि वापस आऊँगा सीधा वहाँ से, पर फिर भाई से मिलने जाना था, कज़न ब्रदर से ऋषिकेश में। तो मिला वहाँ पे 5:30 बजे गए थे। फिर एक बार को प्लान किया, सोचा कि वहीं रुक जाऊँ, पर फिर मैंने सोचा कि खामगा नाइट लगानी पड़ेगी। तो फिर सीधा ऋषिकेश से डायरेक्ट 350 किलोमीटर टोटल पूरे दिन में बाइक चला के आ गया वापस। तो बस थोड़ी सी नाइट ड्राइविंग हुई, पर टचवुड भगवान का नाम लेके सब बढ़िया हो गया। तो ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। कैसी लगी आपको सीरीज़ पूरी कमेंट करिए, और फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।